Second order linear differential equations with variable coefficients, video number 6. Example 2. Solve y double dash minus 4xy dash plus 4x square minus 1 y equals to minus 3 e to the power x square into sin 2x. स्टार्ट करते हैं. इसे लिख देना नंबर 1. ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है. P इक्वल्स टू माइनस 4x, Q इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 1, R इक्वल्स टू माइनस 3 e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x. U equals to e to the power minus 1 by 2 integral P dx equals to e to the power minus 1 by 2 integral minus 4x dx equals to e to the power integral 2x dx equals to e to the power x square. U की वैल्यू आ गई. Q equals to कैपिटल I equals to Q minus 1 by 4 P square minus 1 by 2 P dash. P dash माने dP upon dx. I का फार्मूला ठीक लगा है ना. Q minus 1 by 4 P square minus 1 by 2 P dash बिल्कुल ठीक है. इक्वल्स टू Q 4x स्क्वायर माइनस 1 minus 1 by 4 P square 16x square minus 1 by 2 P dash minus 4 equals to 4x square minus 1 minus 4x square प्लस 2. ये कैंसिल हो गया और कुल मिला के आ गया 1. S इक्वल टू आर बाई यू. ये R है, ये U है. माइनस 3 साइन 2x आ गया. फिर नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे. d square v upon dx square plus iv equals to s implies that d square v upon dx square plus v equals to s. s यानी कि minus 3 sin 2x equals to capital D square plus 1 this whole operated on v equals to minus 3 sin 2x. Number 2. Operator D is here, dy dx. It is linear second order. ये भी लिख दें. It is second order linear differential equation with constant coefficient. With constant coefficient. पिछले वीडियो मैंने आपको सलाह दिया था कि ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए. विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पढ़ लीजिए और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ लीजिए. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है. तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा. तो इसमें सी एफ क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e टू द पावर x
प्लस C2 e टू द पावर -x। समझ रहे ना? 0 प्लस माइनस आई आएगा, तो अल्फा 0 है, बीटा 1 है। इस केस में ये हमने गलत लिख दिया है इस केस में लिखा जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन -3 sin 2x इक्वल्स टू -3 कांस्टेंट होने के नाते बाहर हो गया। d² को इस केस में रिप्लेस करते हैं 2² के निगेटिव से, यानी -4 से, तो -4 प्लस 1 1/-4 प्लस 1 sin 2x। ये और ये कैंसिल हो गया, कुल मिला के आ गया सिर्फ sin 2x। अब आप सोल्यूशन लिखने लायक हो गए। सोल्यूशन ऑफ 2 इज solution of 2 is dependent variable v equals to CF plus PI, अर्थात v equals to C1 cos x plus C2 sin x plus sin 2x। ये रहा v। कंप्लीट इंटीग्रल लिखें, y इक्वल्स टू यू वी इक्वल्स टू u कितना निकला था, e टू द पावर x² इंटू वी C1 cos x प्लस C2 sin x। C1 cos x प्लस C2 sin x, ये तो लिखा ही हुआ है, प्लस sin 2x, sin x प्लस sin 2x। ठीक है भाई, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। Solve the following differential equation by removing first order derivative. By removing first order derivative. Y double dash minus 2 tan x y dash plus 5y equals to e to the power x into sec x। y double dash minus 2 tan x into y dash plus 5y equals to e to the power x into sec x। नंबर 1, p equals to minus 2 tan x, q equals to 5, r equals to e to the power x into sec x। u equal to e to the power minus half integral p dx equals to e to the power minus half integral minus 2
10x equals to e to the power integral 10x dx equals to e to the power sec x, sorry, e to the power log sec x, 10x का इंटीग्रल माइनस लॉग cos x लिखो चाहे log sec x लिखो, तो e to the power log sec x इक्वल्स टू sec x। इस केस में u इक्वल्स टू sec x आ गया इस एग्जाम्पल में। कैपिटल I इक्वल्स टू Q माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पी डैश इक्वल्स टू 5 माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x माइनस 1/2 इंटू पी डैश माइनस 2 sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 5 माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना, इक्वल्स टू 5 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 बचा 6। Also S equal to R by U। U है sec x, sec x से भाग देंगे उसमें तो e to the power x आएगा। After removing first order derivative या टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वी गेट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ 1 एज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आई प्लस आई वी इक्वल्स टू एस, अर्थात डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आई कितना निकला भाई 6 प्लस 6v इक्वल्स टू एस कितना है e टू दी पावर x, implies that capital D square plus 6 operated on v equals to e to the power x, number 2 capital D is d by dx. It is second order linear differential equation with constant coefficients. Auxiliary equation is m square plus 6 equal to 0, implies that m square equal to minus 6, implies that m is equal to 0 plus minus iota root 6। तो वही केस फिर मिला अल्फा प्लस माइनस आई बीटा वाला। इस वीडियो में हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को उठा रहे हैं जिसमें नॉर्मल फॉर्म सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मिल रहा है। अगले वीडियो में हम वो एग्जाम्पल उठाएंगे जिसमें नॉर्मल फॉर्म सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c डॉट f डॉट इक्वल टू e टू द पावर 0 e टू द पावर 0x इंटू c1 cos ऑफ
√6 इंटू एक्स, तो हम x √6 लिख रहे हैं सावधानी के साथ, प्लस C2 साइन ऑफ x √6। √6x लिखने में थोड़ा सा हिचकता हूँ, अगर झटके में भी ऐसे बढ़ गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। ये रहेगा इक्वल्स टू C1 कॉस ऑफ x √6 प्लस C2 साइन ऑफ x √6। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² प्लस 6 ऑपरेटेड ऑन e⁻x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर नहीं कह लो, ऑर्डर बड़ा भी हो सकता है। इस चैप्टर को जब आप पढ़िएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो जरूरी नहीं सेकंड ऑर्डर का ही हो, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर वो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं, सारी बात को आप समझे हुए हैं, जो मैं कर रहा हूँ आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर वो चैप्टर आपका गायब है तो फिर आपको इस बातें नहीं समझ में आ रही होगी, और इसका कोई रेमेडी मेरे पास नहीं है। इसका रेमेडी आपके पास है कि आप उस चैप्टर को पढ़िए, तब इसको पढ़िए। इस वाले केस में e⁻ax, x का कोफिशिएंट जो होता है 1 यहाँ पे है, वही d की जगह रिप्लेस करते हैं, इक्वल्स टू 1/1² प्लस 6 e⁻x इक्वल्स टू e⁻x/7। Solution of this equation 2. Solution of 2 is, इस 2 में डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v बराबर करके लिखा जाएगा CF प्लस PI, दैट इज v इक्वल्स टू C1 cos ऑफ x √6 प्लस C2 साइन ऑफ x √6 प्लस e⁻x/7। u मालूम है आपको, ये v मालूम हो गया तो अब कंप्लीट इंटीग्रल लिखाएगा। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज y इज इक्वल टू u इंटू वी इज इक्वल टू u की जगह लिख दिया sec x इंटू, और v की जगह यही पूरा एक्सप्रेशन C1 cos ऑफ x √6 प्लस C2 साइन ऑफ x √6 प्लस e⁻x/7। लास्ट में जरूर लिख दिया करिए वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, लिखना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखो, वन टू थ्री फोर, एग्जाम्पल नंबर 4। solve d/dx of cos square x dy/dx plus y cos square x equals to 0 by reducing it to its normal form, by reducing it to its normal form, ऐसा। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसे हम y डैश लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलेगा। प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फंक्शन cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y डबल डैश, फिर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव -2 sin x cos x इंटू y डैश प्लस cos स्क्वायर x इंटू y इक्वल्स टू 0। cos स्क्वायर x से डिवाइड करना implies that y डबल डैश माइनस 2 tan x इंटू y डैश, ये y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, नंबर 1।
P equals to -2 tan x, Q equals to 1, R equals to 0. U equals to e to the power -1/2 integral P dx equals to e to the power integral tan x dx equals to e to the power log sec x equals to sec x. इस एग्जाम्पल में u इक्वल टू sec x निकला, इसको अलग से नोट कर लेना। I equal to q minus 1/4 p square minus 1/2 p dash equals to q कहाँ गया हे भगवान, p के बाद यहाँ q लिखना था ना। शाम के टाइम जो थकान रहती है इसलिए एरर इस टाइप का है। Q इक्वल टू 1, ये हो गया 1 -1/4 इंटू पी स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x -1/2 इंटू पी डैश -2 sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 tan स्क्वायर x प्लस 1 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 2। S इक्वल टू R बाई U इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फॉर्म d स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू s, दैट इज d स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2v equals to 0 implies that d square plus 2 operated on v equals to 0, number 2 comma d क्या चीज़ है, the operator d by dx। ध्यान से देख लो। ये भी उसी केस का, उसी टाइप का है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा वाला टाइप। इसमें देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो एम स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 आएगा, एम स्क्वायर बराबर -2, एम बराबर हो गया 0 प्लस माइनस आई रूट 2। तो सी एफ लिख लेंगे, चूंकि राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पी आई नहीं होगा, जो सी एफ है वही सोल्यूशन हो जाएगा। इट्स सोल्यूशन इज v इक्वल्स टू C1 cos ऑफ x रूट 2 प्लस C2 साइन ऑफ x रूट 2। u निकल चुका, v निकल चुका। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 ci ऑफ 1 इज y इक्वल्स टू uv इक्वल्स टू sec x इंटू बड़ा ब्रैकेट C1 cos ऑफ x रूट 2 प्लस C2 साइन ऑफ x रूट 2। ये रहा भैया। तो अब अगले वीडियो में हम 2 या 3 जितने कर पाए ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें नॉर्मल फॉर्म होमोजेनियस इक्वेशन होगा। अब होमोजेनियस इक्वेशन आपको आना चाहिए ना भाई, किसी चैप्टर का इस चैप्टर में उपयोग हो रहा है तो वो चैप्टर आपको आना चाहिए ना। अब हम रुक करके फिर वो चैप्टर पढ़ाएं, ऐसा कहाँ टीचिंग होता है। टीचिंग कोई भी विषय हो क्रमबद्ध ही होता है।
सिक्वेंशियल होता है, 1 by 1 स्टेप आगे बढ़ता है। मैथमेटिक्स में तो ये खास बात होती है। अगर सडनली ये वीडियो आपने खोला हुआ है मेरे चैनल का तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप बंद करिए और इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए, और जो जो बातें सिखाई जा रही सीखिए, जो जो कही जा रही उनको करिए। अब आपसे हमने कहा कि जो है, पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में आप उतरे हैं, तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके पहले के चैप्टर आपके तैयार होने चाहिए ना। अब जैसे देखो 2 चैप्टर का उपयोग इसमें हो रहा है, घुसा हुआ है। थैंक यू।